آخری ہتھیار قسط نمبر 5۔ اس بار سلیبہ نے تہیہ کر لیا تھا کہ وہ براہ راست اپنے ہدف پر پہنچے گا۔ راستے میں پھر سے کوئی پرسرار واقعہ رونما ہوا بھی تو کترا کر گزر جائے گا۔ وہ ایک بار اپنے گرو کے سامنے شرمندہ ہو چکا تھا، دوسری بار نہیں ہونا چاہتا تھا، بلکہ اب کی بار مشن کی تکمیل کے بعد گرو کے سامنے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مطلوبہ جگہ پہنچ کر وہ حیران رہ گیا تھا۔ اس کی سوچ میں ایک انتہائی مشکل مشن کی فائل فٹ تھی، مگر یہاں پہنچ کر اسے مایوسی ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہدف کو دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا۔ گرو نے ایک 16-17 سالہ لڑکے کا انتخاب کیا تھا، اس سے پہلے وہاں کسی اور کی ڈیوٹی تھی۔ اب سلیبہ کو یہ کیس سونپا گیا تھا۔ سلیبہ سوچ رہا تھا کہ شاید گرو نے مجھ سے مذاق کیا ہے۔ اس مشن میں کوئی چارم نہیں تھا۔ 16-17 سالہ لڑکی پر بھلا اسے کیا محنت کرنا ہوگی؟ یہ عمر تو ویسے بھی لچکتی شاخ کی طرح ہوتی ہے، جس طرف چاہو موڑ لو۔ سلیبہ کا تجربہ تھا کہ 30 کی دہائی کے پار کے لوگ ان کے لیے مسائل کھڑے کرتے ہیں، 40 کے اوپر والے بہت پریشانیاں دیتے ہیں۔ وہ بھی کسی ایسے ہی مشکل مشن کی خواہش رکھتا تھا، مگر اس لڑکے کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا۔ اسے گرو کے تخت پر بیٹھ کر گرو کی قربت حاصل کرنے کا خواب چکنا چور محسوس ہو رہا تھا، مگر ڈیوٹی اسے بہرحال سر انجام دینا ہی تھی۔ گرو کے سامنے انکار کی جرت کسی میں بھی نہیں تھی۔ پھر گرو کی گروجا، اس کی منطق بھی عجیب ہوتی تھی۔ گرو اپنے بیٹے کو 40 سال تک سلائے رکھتا ہے، اس لیے کہ گرو کو بیٹے سے ایک خاص کام لینا ہوتا ہے۔ سلیبہ سالوں سے اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا، فی الحال اسے کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑ رہی تھی۔ وہ لڑکے پر پوری نظر رکھے ہوئے تھا۔ لڑکے کا نام ذیشان تھا، گھر والے اسے شانی کہتے تھے۔ شانی بہت شرارتی تھا، دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ، ہوٹلنگ، محفل موسیقی، ہنگامہ آرائی، لوگوں سے چھیڑ چھاڑ اس کے محبوب مشاغل تھے۔ تیسری رات کے آخری پہر سلیبہ چونک پڑا تھا۔ اسے شانی کی سرگرمیوں میں پہلی بار اصرار اور تجسس نظر آیا تھا۔ وہ رات کے 3 بجے گھر والوں سے چھپ کر باہر نکلا تھا۔ باہر جانے کے لیے اس نے عقلی راستہ اپنایا تھا۔ سلیبہ نے محسوس کیا تھا کہ ذیشان چلتے ہوئے خوف محسوس کر رہا تھا، کہیں کہیں اس کے قدم لڑکھڑا جاتے تھے۔ 2-3 جگہوں پر وہ بے مقصد رکا رہا۔ رات کی روایتی خاموشی بہت گہری تھی۔ بادلوں کی وجہ سے چاند چھپا ہوا تھا، ہوا نہ ہونے کی وجہ سے ماحول گرم تھا۔ شانی کوئی تذبذب کا شکار تھا۔ وہ تقریباً 1 کلومیٹر چلا تھا، اس کے بعد رک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا تھا۔ سلیبہ نے اندازہ لگانے کی کوشش کی کہ ذیشان کیا دیکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سلیبہ کو وہاں کوئی انوکھی چیز نظر نہیں آئی جسے شیران کی نظروں کا ہدف جانا جاتا۔ سلیبہ بھی قیاس کے گھوڑے دوڑا رہا تھا کہ اچانک تیز ہوا کے جھکڑ چلنے لگے تھے۔ موسم کی اچانک تبدیلی سمجھ میں نہ آنے والی تھی، کیونکہ اس سے پہلے کہیں پتا بھی حرکت میں نظر نہیں آتا تھا۔ سلیبہ نے ذیشان کی طرف دیکھا تو وہ حیرت سے اچھل پڑا تھا۔ انتہائی پراسرار اور حیرتناک منظر سلیبہ نے دیکھا تھا۔ ویل ڈن مسٹر ڈیوڈ، ویل ڈن، تم نے ثابت کر دیا کہ تم عظیم اسرائیل کا عظیم سرمایہ ہو۔ ڈیوڈ جیسے ہی آفس میں داخل ہوا، اسے دفتر خارجہ کے سیکرٹری این.کے. بلیوڈ نے گلے سے لگا لیا تھا۔ اس کے چہرے پر غیر معمولی خوشی تیر رہی تھی۔ ہمیں ان تمام ملکوں سے لیٹر موصول ہو چکے ہیں جنہیں میٹنگ میں بلایا گیا تھا۔ گڈ نیوز مسٹر بلیوڈ، ڈیوڈ نے کرسی سنبھالتے مسکرا کر جواب دیا۔ اس سے بڑھ کر گڈ نیوز یہ ہے کہ وہ سب ہمارا ساتھ دینے پر ایگری ہیں۔ مجھے 100% یقین تھا۔ میں نے دانہ ہی ایسا پھینکا جس کو چگنا ان کی مجبوری تھی۔ آپ کا کہنا حرف بحرف درست ثابت ہوا۔ حالانکہ میرے پلان کو اسرائیل کے بہت سے اعلیٰ حکام نے طویل المیعاد اور صبر آزما قرار دیا تھا، ڈیوڈ نے پراعتماد لہجے میں کہا۔ سچ تو یہ ہے کہ تبھی اس کی کامیابی کا 40% امکان تھا، کیونکہ جن ممالک کا آپ نے انتخاب کیا تھا وہ خود اپنی جگہ پہاڑ ہیں۔ یہ ہر دوسرے ملک کو اونٹ سمجھتے ہیں جس کا پہاڑ کے نیچے آ کر غرور خاک میں مل جاتا ہے، مگر تمہارے بے مثال منصوبے نے سب کو سر خم کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ میں نے کہا تھا مسٹر بلیورڈ، سفر 2000 میل کا بھی ہو، شروع بہرحال ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ آپ حق بجانی ہیں ڈیوڈ، آپ نے اس سفر کا کامیاب آغاز کیا ہے۔ مسٹر پریزیڈنٹ اس کامیابی پر بہت شادہ ہیں، انہوں نے اس مشن کی باضابطہ منظوری دے دی ہے۔ یہ دوسری بڑی گڈ نیوز دے رہے ہیں آپ کو اس مشن کا سربراہ چنا گیا ہے، جس کا باقاعدہ آئندہ میٹنگ میں اعلان کیا جائے گا۔ بلیورڈ نے تفصیل جاری رکھی۔ آپ کی خواہش کے مطابق نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ یہ اسرائیل کے ماہرانہ سائنسداں مسٹر ہاورڈ ہیں۔ ہمارا ارادہ ہے جو نئی نیوکلیئر ریسرچ لیبارٹری بنائی جائے گی، اس کا سربراہ مسٹر ہاورڈ کو بنایا جائے، تاہم مسٹر ہاورڈ آپ کی زیر نگرانی کام کریں گے۔ بلیورڈ نے کہتے ہوئے ایک فائل ڈیوڈ کی طرف بڑھائی۔ اب اس کا مطالعہ کریں۔ ڈیوڈ نے فائل کو ایک نظر دیکھا۔ اس کے اوپر جلی حروف میں ہاورڈ لکھا ہوا تھا۔ ہم نے آپ کی فائل ہاورڈ کو بھجوائی تھی، آپ انہیں یہاں مل سکتے ہیں۔ ڈیوڈ نے بلیورڈ کے ہاتھ سے وزٹنگ کارڈ لے کر جیب میں رکھ لیا۔
डेविड 2 दिन बाद हावर्ड को मिला था। हावर्ड 60-62 साल का शख्स था। सर और भौहों के बाल बर्फ के गालों की तरह सफ़ेद थे। चेहरे से दाढ़ी और मूछें गायब थी। मिस्टर डेविड, मैंने आपकी फाइल पढ़ी है। मुझे लगता है जिस सुपरमैन या माफूकुल अकल शख्स की आप बात करते हैं, इसका तजुर्बा खुद पर आजमा चुके हो। मैं आपकी बात नहीं समझ सका। सीधी बात है मिस्टर डेविड, आप लातादाद सलाहियतों के मालिक हो। दुनिया का कोई भी मौजू आप इस पर मुदल्लल बात कर सकते हो। साइंस की दुनिया में देखा जाए तो आपसे बड़ा कोई साइंसदान नज़र नहीं आता। फल्कियात, तिबियात, मुआशियात और रियाजियात आपको हर शोबे में माहिर पाया गया है। मुझे लगता है कई ज़हीन इंसानों की मेमोरी आपने अपने दिमाग में अपलोड कर ली है। आपका अंदाज़ा गलत है मिस्टर हॉवर्ड। जो मैं सुपरमैन बनाऊंगा वो मुझसे 100 गुना ज़्यादा सलाहियतों का मालिक होगा। मिस्टर डेविड, मुझे जो फाइल दी गई थी इसमें आपका बयान करदा पूरा प्लान भी शामिल था, वो मुमकिन तजर्बात भी जो आप करवाना चाहते हैं। इसमें कुछ बातें बहुत अजीबोगरीब हैं। मसलन वो कौन सी बातें हैं जो अजीबोगरीब हैं? मसलन हम वक्त को थाम लेंगे। मिस्टर हावर्ड, आप माहिर साइंसदान हैं। कम अज़ कम आपकी लिए बात अजीब नहीं होनी चाहिए। मैं फिर भी इस पर रोशनी डालता हूँ। आपको मालूम है ये ज़मीन एक देवहैकल मकनातीस की तरह है। ये गर्दिश के मुख्तलिफ दर्जों के साथ मकनातीसी मैदान तख्लीक करती है। इसका ताकतवर और कसीफ मकनातीसी मैदान ज़मीन की तेज़ गर्दिश से माखूज़ है। यह तो एक आम सी बात है। इसमें वक्त को कैसे थामा जा सकता है? आप मेरी बात मुकम्मल होने दें। ज़मीन की गुमक का तवातुर इसकी गर्दिश से बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है। हम ज़मीन की गुमक के तवातुर को ज़मीन की नब्ज़ कह सकते हैं। आज से 4 या 3 सदियाँ कबल का फार्मूला है। ज़मीन की नब्ज़ 7.8 हर्ट्ज़ या 7 साइकिल फ़ी सेकंड थी। अगर हम ज़मीन की गुमक को 7 साइकिल फ़ी सेकंड बढ़ाकर 13 साइकिल फ़ी सेकंड तक ले जाएं तो। डेविड की बात सुनकर हावर्ड हैरत से उछल पड़ा था। ओह नो, ये कैसे मुमकिन है? कुर्रा अर्ज़ की फ़ज़ा को छेड़कर ज़मीन की नब्ज़ में तेज़ी ला सकते हैं। अगर ज़मीन की नब्ज़ में 13 साइकिल फ़ी सेकंड तेज़ी आ जाए तो ज़मीन मकनातीसी फील्ड ज़ीरो के करीब आ जाएगा। मकनातीसी मैदान थम जाएगा। ज़मीन की गर्दिश रुक जाएगी। गोया वक्त रुक जाएगा। एक दिन एक हफ्ता के बराबर, ये ऐन मुमकिन है 1 माह के बराबर हो जाए। आप वाकई हैरान कुछ शख्स हैं मिस्टर डेविड। हावर्ड ने इसे रश्क आमेज निगाहों से देखते हुए कहा। हावर्ड, हमने इसराइल को अजीम तर बनाना है, दुनिया को मुट्ठी में लेना है। इस दुनिया पर सिर्फ हमारी हुक्मरानी होगी, सिर्फ यहूदियों की। आपका मंसूबा मुझे इसलिए भी पसंद आया है मिस्टर डेविड के इसमें इसराइल को पूरी दुनिया का हाकिम बनाने की बात की है, वरना आज तक दुनिया की अहम इजादात के पीछे हमारा हाथ होने के बावजूद हमसे ज़्यादा फ़ायदा दुनिया उठा रही है। आप ठीक कहते हैं हावर्ड। दुनिया आज तरक्की की जिस राह पर गामजन है वो यहूदी साइंसदानों का कमाल फ़न है। सबसे पहले अहम इजाद माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का खालिक टनले अजीम साइंसदान यहूदी था। न्यूक्लियर चैन रिएक्टर के पीछे ल्यू ऑप्टिकल फाइबर केबल का खालिक पीटर, रेडियो टेप का इजाद करने वाला कम्बरग, सभी हमारे भाई हैं। सब यहूदियों के बेमिसाल दिमागों की इजादात पर मज़े उड़ा रहे हैं। इन तमाम अजीम साइंसदानों में अब एक और बाकमाल और ज़हीन तरीन डेविड जोहानसन का नाम शामिल हो चुका है। हावर्ड ने इंतहाई खुलूस से दादे तहसीन के फूल निछावर किए थे। थैंक यू मिस्टर हावर्ड। मिस्टर डेविड, आपने मनचाहे मौसमों की तब्दीली का भी जिक्र किया है। क्या आपका इशारा मौसमी बारिश की तरफ है? जहाँ ज़मीन बंजर हो वहाँ मौसमी बारिश से इसे कारआमद बनाया जा सकता है, और जहाँ हरियाली हो वहाँ कुदरती बारिशों को रोककर ख़ज़ाओं को दराज किया जा सकता है। अगर आपके ज़हन में ये सवाल हो कि कैसे मुमकिन है, तो इसका आसान कुलिया है। ज़मीन के किसी भी मखसूस हिस्से में फ़ज़ा को इलेक्ट्रॉनिक बीम के ज़रिए आयोनाइज किया जा सकता है, या फिर इसी हिस्से को डी आयोनाइज भी किया जा सकता है। डेविड ने कहा। आपकी फ़हम व बसीरत का कायल हो गए मिस्टर डेविड। आपके साथ काम करते हुए मज़ा आएगा। मुझे भी मिस्टर हावर्ड, आपके ज़रखेज़ दिमाग से बहुत कुछ लेना है, डेविड ने कहा। इसके बाद वो न्यूक्लियर रिसर्च लेबॉर्ट्री जो अनकरीब बनाई जा रही थी इसके बारे में डिस्कस करने लगे थे। हेलो इजाज़ बेटा, मैं सदाकत अली ख़ान बोल रहा हूँ। डैडी, शुक्र अल्लाह का, मैंने आपकी आवाज़ सुनी। दूसरी तरफ से सदाकत अली ख़ान के बेटे एजाज़ अली की सिसकी भरी आवाज़ उभरी। सदाकत ख़ान बेटे की आवाज़ 3 माह बाद सुन रहा था। बेटा कैसे हो तुम? और अयाज़ बेटा कैसा है? सदाकत ख़ान ने बेमुश्किल लहजे पर काबू पाया। इसकी आंखें पूर्णम थी और चेहरे पर फिक्रमंदी की दबीज़ तहें चढ़ी हुई थी। डैडी, मैं आपकी आवाज़ सुन रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं डैडी? घर में सब खैरियत है? इस बार छोटे बेटे अयाज़ अली की आवाज़ ने सदाकत ख़ान को लर्ज़ा बरअंदाम कर दिया था। अयाज़ अली एजाज से छोटा था, मगर वो मजबूत आसाब का मालिक था। इसने अपने लहजे पर मुमकिन हद तक काबू रखा हुआ था। एजाज के लहजे से साफ लग रहा था कि वो रो रहा है। बेटा, तुम लोगों को वहाँ कोई तकलीफ़ तो नहीं, टॉर्चर तो नहीं किया जा रहा? नहीं डैडी, इन लोगों का कहना है कि जब तक तुम्हारे डैडी हमारी बातें मानते रहेंगे तुम भाइयों को कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी।
बेटा तुम लोग परेशान मत होना। एजाज बेटा तुम दिल छोटा मत करना, अनकरीब तुम दोनों भाई पाकिस्तान में होगे। डैडी आप प्लीज कुछ कीजिए, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। एजाज ने लड़खड़ाते लहजे में मुश्किल कहा था। वो रो रहा था और सदाकत अली खान इसके आंसू अपने दिल पर गिरते हुए महसूस कर रहा था। अयाज तुम भाई को संभालो बेटा, अल्लाह ताला ने हम पर यह कड़ा इम्तिहान डाला है। डैडी आप फिक्रमंद ना हो, इंशाल्लाह इस इम्तिहान में सुरखरू होंगे। डैडी आपने मम्मी को बताया? अयाज ने बाहौसला जवाब देकर सदाकत खान को संभाला दिया था। नहीं बेटा मैं खुद इस आग में जल रहा हूँ, मैंने घर में किसी को नहीं ये बताया, ना बता सकता हूँ। ये बहुत अच्छा किया आपने डैडी। बेटा एजाज को दिलासा देना, ये बहुत हसास और छोटे दिल का मालिक है। डैडी आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बेटा मैं इनके साथ मुकम्मल ताउन कर रहा हूँ, कुछ दिनों की बात है तुम लोगों को रिहा कर दिया जाएगा। सदाकत अली खान ने चाहने के बावजूद लहजे पर काबू ना पा सका। इसके होंठ कपकपाने लगे थे, आंखों से आंसू जारी थे। इसके सामने जोसेफ और बोथम स्पाट चेहरे के साथ खड़े थे। इनकी नज़रों में सफाकी थी। डैडी हम यहाँ आला तालीम के लिए आए हैं, तकदीर ने कैदी बना दी है, मुकद्दर का लिखा कोई नहीं टाल सकता। आपको और हमको हिम्मत से काम लेना होगा। बेटे ने बाप की हिम्मत बढ़ाने की अच्छी कोशिश की थी। सदाकत अली खान एजाज से बात करने में परहेज कर रहा था। वो जानता था कि एजाज के आंसू और भीगा हुआ लहजा इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जोसेफ ने इसे काल मुनक़ता करने का इशारा किया था। ओके एजाज बेटा मैं फिर फ़ोन करूँगा। अयाज बेटा तुम समझ गए हो ना कि मैं क्या चाहता हूँ? जी डैडी, घर में सबको सलाम कहिएगा। ओके बेटा अल्लाह हाफिज़। सदाकत खान ने राब्ता मुनक़ते कर दिया था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो दिया था। निसारपुर के जंगलात में शिकार पर चीते की तरह झपटने वाला सदाकत खान आज बहुत बूढ़ा हो गया था। इसके चौड़े शाने सिमट गए थे। इसने कांपते लरजते हाथ जोसेफ के सामने जोड़ दिए थे। प्लीज़ जोसेफ, मैं तुम्हारे खुदा का वास्ता, हम पर इतना बड़ा जुल्म मत करो, मेरे बेटों को छोड़ दो। औलाद की परेशानी ने मुझे मगलूब कर दिया है। सदाकत खान जब तक तुम्हारा ताउन जारी रहेगा वो महफूज रहेंगे। जोसेफ ने इत्मीनान से जवाब दिया। मैं वादा करता हूँ कि मेरा ताउन इसी तरह जारी रहेगा, बस तुम लोग मेरे बेटों को छोड़ दो। मैं इनके दुख में निढाल हो गया हूँ, मैं टूटते बिखरते वजूद के साथ कुछ नहीं कर पाऊंगा। सॉरी मिस्टर सदाकत खान, फिलहाल तुम्हें ये दुख झेलने होंगे। इस बार बोथम ने स्पार्ट अंदाज में कहा था। बोथम तुम मेरे बेटों को आज़ाद छोड़ दो, इन्हें पहले की तरह पढ़ने दो, पाकिस्तान में आने दो, बेशक इनकी निगरानी करो। मेरे ताउन में कहीं भी कोई लचक देखो तो इन्हें फिर से कैद कर लेना। तुम्हारी बात माकूल है। बोथम ने लहजे की तलखी का ग्राफ नीचे नहीं आने दिया था। सदाकत खान, हमने वादा के मुताबिक तुम्हारी अमेरिका में बेटों से बात करवा दी है, अब मज़ीद कुछ नहीं कर सकते। अब तुम्हें करना है, हमें ये चाहिए। जोसेफ ने इसकी तरफ तस्वीर उड़ाते हुए कहा। सदाकत खान ने तस्वीर को देखकर हैरत से गुंग हो गया। वो कभी तस्वीर को देखते और कभी जोसेफ को। इस कदर हैरान क्यों हो? ये तस्वीर? बौखलाहट में सदाकत खान कुछ नहीं कह पाया था। लड़की की है। बोथम ने तंज़ी अंदाज में इसकी अधूरी बात मुकम्मल की थी। और ये लड़की में चाहिए। जोसेफ ने मुस्कुराकर बोथम को देखा। ये तस्वीर असद मोहम्मद खां की बेटी किंजा की है। सदाकत खान ने कहा। हम नहीं जानते किसकी है, हम ये जानते कि आइंदा 2-3 दिनों में हमारे पास होनी चाहिए। इस बार जोसेफ के लहजे में करख्तगी थी। नहीं जोसेफ, ऐसा कभी नहीं हो सकता। असद मेरा बेहतरीन दोस्त है, इसकी बेटी मुझे भी अपनी बेटी जैसी लगती है। सोच लो सदाकत खान, एक तरफ 2 सगे बेटे हैं, दूसरी तरफ बेटी जैसी लड़की, मगर बेटी है नहीं। मैं सब कुछ कर सकता हूँ मगर इज्जत का सौदा नहीं कर सकता। किंजा मेरे दोस्त की बेटी है, तुम किसी आम लड़की का कहते तब भी मैं काम नहीं करता। मैं वतन की बेटी फरोख्त नहीं कर सकता। सदाकत खान की बात सुनकर बोथम ने अमेरिका राब्ता कर लिया था। सदाकत खान बोथम की बात सुनकर उछल पड़ा। बोथम कह रहा था, हमें सदाकत के छोटे बेटे अयाज की कोई ज़रूरत नहीं, इसे मार दो। शानी रात के 3 बजे घर से निकला था। वहाँ तक पहुँचते हुए डर बहुत लगा था। जहाँ इसने ये पुरस्कार रोशनी देखी थी और नाकाबिले फ़हम आवाज़ें सुनी थी। कभी कभी इसके दिल में वापस पलट जाने का ख्याल आता था। कदम थम जाते थे और वो लहजा भर सोचों में घिर जाता था, मगर खौफ और रास को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। पलट जाने की सोच जरूर आई थी, लेकिन दिल में लबालब भरा तजस्सुस कदम आगे बढ़ाने पर मजबूर कर रहा था। वो चलते रुकते और फिर चलते आखिर वहाँ पहुँच गया जहाँ रोशनियों का हाला फलक को छू रहा था, जहाँ पुरस्कार आवाज़ों ने इसे सोचों के समंदर में उतार दिया था। रात की तारीकी रूज पर थी, हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता था। रोशनी की बारीक लकीर भी मीलों दूर से देखी जा सकती थी, लेकिन जिस रोशनी की खोज में वो यहाँ चलकर आया था वो आज गायब थी। ना आवाज़ें सुनाई दे रही थी, माँ सिवाय कहीं कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ के फजा पर मुहिब सन्नाटा था। शानी सोचों में घिर चुका था। अभी वो किसी फैसले की दहलीज पार नहीं कर पाया था कि तेज़ हवाओं के झक्कड़ चलने लगे थे। झक्कड़ इतने अचानक चलना शुरू हुए थे कि शानी के ओसान खता हो गए थे।
رات کے گہرے سناٹے میں تیز ہواؤں کی شائیں شائیں دل کو دہلانے لگی تھی۔ شانی واپس پلٹنے لگا کہ ہوا کا تیز بگولا اس کے گرد لٹو کی طرح گھومنے لگا تھا۔ شانی نے ایسا ہوا کا گول چکر دور سے کھڑے ہو کر دیکھا تھا جو اچانک کہیں بھی تیز پھرکی کی طرح گھومتا ہوا اس کے ساتھ خس و خاشاک دھول مٹی پوری رفتار سے گھومتے تھے۔ کبھی اس چکر میں کوئی کپڑا یا پلاسٹک کی تھیلی آ جاتی تو بگولا اسے سیکنڈوں میں آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیتا تھا۔ شانی کا دماغ گھومتی ہوا کے ساتھ گھومنے لگا تھا۔ ہوا کے زوردار تھپڑ جسم کے آر پار ہو رہے تھے۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے جسم پر ہنٹر برسائے جا رہے ہیں۔ وہ تیز گرد و غبار سے باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں چلانے لگا، لیکن ہوا کے پھندے جسم کے گرد جیسے لپٹ گئے تھے۔ وہ انتہائی بری طرح پھنس گیا تھا۔ وحشت، دہشت اور تیز ہواؤں کی امتزاج نے ذہن کو چٹخا دیا تھا۔ اس کے دماغ پر دھنسی چھانے لگی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ موت کے کنویں میں گھوم رہا ہے، کیونکہ زمین سے اس کے قدم اکھڑ چکے تھے۔ گولی کی طرح تیز چلنے والے بگولے میں شانی چیخ رہا تھا، زور زور سے مدد کے لیے چلا رہا تھا۔ وہ یہ بات جاننے سے قاصر تھا کہ اس کی چیخوں پکار فقط ہوا کے چکر تک محدود ہے۔ اس کی آوازیں نزدیک ترین مکان والے بھی نہیں سن سکتے تھے۔ وہ بے خبر نیند کی میٹھی آغوش میں سکون کی سانس لے رہے تھے۔ اس خوفناک عمل میں بمشکل 2 منٹ صرف ہوئے تھے۔ دیکھتے دیکھتے بگولا شانی کو فضا میں بلند کر چکا تھا۔ تیسرے منٹ میں وہ شانی کو ناقابل شناخت حدوں میں لے گیا تھا۔ تب تک شانی ہوش و حواس کی دنیا سے بے خبر ہو چکا تھا۔